إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہمہ قسم کی حمد و ثنا خوبیاں بڑائیاں بزرگ برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا، ہمارے ہر قسم کے ضروریات کے سامان فراہم فرمائے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے سے بہترین بندوبست فرمایا. وہ اللہ رب العالمین کی جس نے ہمیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا. بعدہ درود السلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا.
खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतें और उसकी बरकतें नाज़िल हों कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातमुन नबीय्यीन बनाकर, इमामुल अंबिया बनाकर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने सूरह हामीम सजदा की एक आयत तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिकामत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है। अब बात यह आती है कि इस्तिकामत कहते किसको है? इस्तिकामत किसको कहा जाता है? इस्तिकामत कहते हैं कि जो फरमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया उस फरमान पर डट जाओ, उस फरमान पर जम जाओ। जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी रसूल आते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, आप मुझे एक ऐसा अमल बतला दीजिए, आप मुझे एक ऐसा अमल बतला दीजिए कि वो जो मेरे लिए काफी हो जाए, जो मुझे जन्नत में ले जाने वाला बन जाए, और उसको पूछने के बाद फिर अब मुझे किसी और से उस मामले में दरियाफ्त करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अब्दुल्ला, आपने इरशाद फरमाया कि कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तकिम, यानी अब्दुल्ला तू ये कहे कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया, फस्तकिम, और उसके बाद उसके ऊपर तू डट जा, उसके ऊपर तू जमा रहे। यानी ये इकरार कर लेने के बाद, अपने दिल में इस बात को बैठा लेने के बाद कि तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार कर लिया है, कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन को तूने अपना यकता रोजगार माबूद मान लिया है, कि तू अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवाय किसी और के आगे अपने हाथों को नहीं जोड़ेगा, किसी और के सामने तू अपनी पेशानी को नहीं झुकाएगा। अगर तुझे सजदे की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसी वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी पेशानी को रखेगा और उसी के लिए सजदे करेगा। अगर तुझे कोई हाजत बरारी की जरूरत है, अगर कोई तुझे जरूरत आन पड़ी है, तो अपनी उस जरूरत की फरियाद भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखेगा। और अगर तू किसी मुश्किल के अंदर मुलव्विस है तो अपनी उस परेशानी को, अपनी उस मुश्किल को भी उसी बारे अल्लाह की दरगाह के अंदर ही अपनी उस परेशानी को तू रखेगा। अगर तुझे औलाद की जरूरत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे औलाद देगा। अगर तुझे रोजगार की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग करके तो दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे रोजगार अता कर देगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तू किसी भी चीज का मुतालबा करना चाहे, किसी चीज की तुझे जरूरत आन पड़ी है और तू अल्लाह से उसका मुतालबा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तेरे उस मुतालबे को, तेरे उस फरमान को पूरा फरमा देगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? कुल आमन्तु बिल्लाह, ऐ साहबी तू ये कह के मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया। ऐसा नहीं है कि जबान से ईमान ले आए, जबान से कह दिया कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा माबूद है, हम उसी को अपना रब मानते हैं, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। इधर हमने नमाज के अंदर कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हर नमाज के अंदर 4 रकत की नमाज है, 4 रकतों के अंदर हर रकत में हमने अल्लाह से वादा किया, हे अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। और इधर जरूरत आन पड़ी औलाद की, 10 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, 5 साल हो चुके, लेकिन अभी औलाद अता नहीं हुई है। इधर पहुंच गए गैरों के आस्थाने पर, इधर पहुंच गए अपने बाबाओं के मज़ारों पर और उनसे फरियाद करने लगे कि ऐ बाबा, ऐ हमारे हाजत रवा, तुम हमें औलाद दे दो। ये ईमान नहीं, ये इस्तिकामत नहीं, बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल आमन्तु बिल्लाह, तुम कहो कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया। अगर तुझे औलाद की जरूरत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से मांग करके दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जरूर अता फरमा देगा। जिस तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु
अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुके हैं, उनकी बीवी हैज नहीं आता है, उनका हैज भी बंद हो चुका है, बिल्कुल हाथ पैर डगमगाने लगे हैं, उनके बदन के अंदर ताकत बाकी नहीं बची है, किसी भी तरह की कोई आस और कोई उम्मीद नहीं है। इसी दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका, ला तज़रनी फर्दा, तू मुझे अकेला और तन्हा मत छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, बेशक तू बेहतरीन वारिसों में से है। यानी क्या दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह मेरे कोई औलाद नहीं हुई है, बुढ़ापा आ चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई औलाद अभी तक नहीं थी, किसी गैर के दरबार में नहीं गए, किसी वली के मजार पर नहीं गए, बल्कि दुआ की तो किससे की? उन बादशाहों के बादशाह से, आकमुल हाकिमीन के दरगाह में, अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी फरियाद को रखा। इधर फरिश्ता आता है, आसमान से उतरता है ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नुबश्शिरुका बियहया, यानी हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दे दी कि ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं, अब तुम्हें एक बेटा पैदा होने वाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से कहते हैं कि मुझसे मजाक क्यों करते हो, मेरे आलम तो ये है कि मेरे पैरों में खड़े होने की भी सकत बाकी नहीं बची है, मेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी के पास जा सकूं, और मेरी बीवी के आलम यह है कि अब तो उसके हैज आना भी बंद हो चुका है, तो मेरी बीवी की औलाद कहां से पैदा होगी? फरिश्ते ने कहा ऐ ज़करिया, ये तेरे रब का फरमान है, और तेरा रब कभी झूठ नहीं बोलता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की बशारत दे दी, और साथ ही कैसी? फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बुर्दबार बेटे की उन्हें बशारत दे दी। साथ ही और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एहसान और कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बेटे का नाम भी तजवीज कर दिया और कह दिया कि तुम्हारे उस बेटे का नाम यहया होगा, कि उसको भी हम तुम्हारे बाद में नबी बनाएंगे। कितना बड़ा इनाम कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अगर गैरों के आस्थाने पर जाते तो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, इंसान को वही मिलेगा जो उसके मुकद्दर के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है कि मुझे ऐसे लोगों के ऊपर ताज्जुब आता है, इबादत तो मेरी करते हैं, नाम मेरा लेते हैं, लेकिन जब गैरों के पास में, गैरों के आस्थाने पर जाकर उनसे फरियादें करते हैं, जबकि फरियादें गैरों से करते हैं, दुआएं गैरुल्लाह से मांगते हैं, लेकिन देने वाली जात तो मेरी है, देता तो उनको मैं ही हूं। ठीक है, तुम मुझसे नहीं मांगते हो, मत मांगो, लेकिन मैं दुनिया के अंदर तो देखो तो मैं दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? मैं दुनिया के अंदर तो तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे शिकंजे कस दूंगा। तो इसको कहते हैं इस्तिकामत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तकिम, ए अल्लाह के बंदे, तू ये कह के मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया, फस्तकिम, और फिर उसके बाद तू उसी के ऊपर डट जा। अगर पूरी जिंदगी तूने ऐसी इस्तिकामत के साथ में गुजार दी तो तू कामयाब हो जाएगा, और तुझे दीन के मामले में किसी से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा फार्मूला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। और इधर ऐसा ईमान ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल है। कुरान मजीद को उठा करके देखिए, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया भर के वाकयात को बयान फरमा दिया। कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत को अल्लाह ने बतलाया, कहीं हजरत हूद यानी सालेह अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई, कहीं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत बयान फरमाई, कहीं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई। यही नहीं, अंबिया किराम ही नहीं, जो पहले के सुलहा थे, उनकी भी इस्तिकामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ के इस्तिकामत के बारे में कुरान की सूरह कहफ के अंदर बयान फरमा दिया कि वो कहफ वाले कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी उनके ऊपर दोभर हो गई, जब वक्त का बादशाह उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करने देता, उनके तौहीद के ऊपर शिकंजे कसने की कोशिश करता,
वो अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता, लेकिन वो उन्होंने उस बादशाह को अपना खुदा नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया, हमने उनसे कहा कि ऐ लोगो, ऐ मेरे नेक बंदो, तुम अपनी जान बचाते हुए कहीं किसी गार के अंदर जा करके छुप जाओ, मैं तुम्हारी कुल्ली तौर पर मदद करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया? जाओ किसी गार के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब वो उस गार के अंदर पहुंच गए तो कुरान के अंदर है लगभग 300 साल तक उस गार के अंदर छिपे रहे। जैसे ही वहां गए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सुला दिया, सो गए। और जब 300 साल के बाद में जब उनकी आंख खुली, जब जागे, तो उनमें से उनके पास उसी जमाने की सिक्के जो बाजार के अंदर चला करते थे, वो सिक्के उनके पास मौजूद थे। वो सिक्के लेकर एक आदमी को भेजते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ, भूख लगी हुई है, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बाजार से ले आओ। वो बेचारा डरते डराते कि अगर बादशाह के किसी सिपाही को अगर इत्तला मिल गई कि हम बाजार में घूम रहे हैं, तो जरूर वो हमें पकड़वाएगा और हमें कत्ल करवा देगा। बहरकैफ डरते डराते उनमें से एक इंसान बाजार के लिए जाता है, और जैसे ही उसने वो सिक्का दुकानदार को दिया सामान खरीदने के लिए, तो वो आश्चर्यचकित रह गया, अचंभे के अंदर आ गया कि आखिर तुम्हारे पास ये इतना पुराना सिक्का आया कहां से। वो शख्स डर गया, उसने कहा कि जरूर इसने मुझे पहचान लिया है, अब ये जरूर अपने बादशाह को मेरे बारे में खबर करेगा और अब ये मुझे कत्ल करवा देगा। ये थोड़ा सा डरने लगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये बताइए कि ये सिक्का तुम्हारे पास आया कहां से। कहा इसी देश का तो सिक्का है मेरे पास में, और कहां से आएगा। कहा हजरत ये 300 साल पुराना सिक्का है। अरे नहीं, 300 साल पुराना कहां है, अभी कल की तो बात है, हम यहां से गए हैं। फिर उन्होंने पूछा, अच्छे बताओ फिलहाल तुम्हारा बादशाह कौन है, किसकी हुकूमत चल रही है। तो कहा कि फला इंसान है और बहुत नेक इंसान है, खुदा तरस इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है जो इस वक्त देश का बादशाह है। कहा कि हमारे जमाने में बादशाह फला हुआ करता था। जब वो वापस आया सामान लेकर, जब उसने बतलाया कि हमें यहाँ पर सोए हुए 300 साल गुजर चुके हैं और इस तरीके से अब दूसरे बादशाह की हुकूमत चल रही है। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से उन लोगों की मदद फरमाई। कि अल्लाह आज मदद नहीं कर सकता? मदद कर सकता है, शर्त है इस्तिकामत के साथ में रहो। या तो अल्लाह दुनिया के अंदर ही मदद कर देगा, और अगर दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुली मदद नहीं करता है किसी मसलहत के जेर नजर, तो मरने के बाद जरूर बेजरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता फरमाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कह चुका, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक जो लोग उन्होंने कहा कि आमन्ना, हम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी के ऊपर डटे रहे, जमे रहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की बशारत हम सुनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की जन्नत की बशारत दे देता है। जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद की अम्मा पारे की सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिकामत की कितनी बेहतरीन मिसाल पेश फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुतिला सहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आसमान के ऊपर उठा चुका है, लेकिन फिर भी आपके मानने वाले इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद इस दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के इलाके के अंदर भी शिर्क और बुत परस्ती राइज हो गई, और वहां पर एक यहूदी बादशाह ने अपना कब्जा कर लिया, जो कि अपने आप को खुदा कहलवाया करता था। बहरकैफ वो बादशाह अपने आप को खुदा कहलवाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने उस बादशाह को अपना खुदा कहने से इनकार कर दिया। एक लड़का, जो कि बारहा आप लोगों ने वो हदीस सुनी होगी, मुस्नद अहमद की हदीस, जिसके इमाम मुस्लिम भी अपनी सही के अंदर लेकर के आए हैं, वो हदीस सुनी होगी कि एक बादशाह ने अपने
एक जादूगर के लिए एक लड़के का इंतजाम किया था। हालांकि वक्त कम है, इस वाकये के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। इसके आखिर में इतना ही कहूंगा कि उस लड़के की बदौलत जब लोगों के अंदर ईमान की रोशनी जगमगा गई तो उनमें से कुछ इलाके के लोगों ने कहा कि हम ए बादशाह तुझे अपना रब नहीं मानते, बल्कि हम उस अल्लाह वादहू ला शरीक को अपना रब तस्लीम करते हैं। उस बादशाह ने के अंदर क्या किया, कुतिला असहाबुल उखदूद, तो उस बादशाह ने उन तमाम मुसलमानों के लिए, उन तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले बंदों के लिए पूरे शहर में चारों तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां खुदवा दी, गहरी खाइयां खुदवा दी, और पूरे इलाके के लोगों से कहा कि जाओ लकड़ियां चुन चुन करके लेके आओ और इन खाई के अंदर इन लकड़ियों को भरो। जब लकड़ियां भर दी गई तो एक जबरदस्त आग उन खाइयों के अंदर जला दी गई। जब आग इतनी जबरदस्त रोशन हो गई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, उनको लेकर के आओ। अगर वो अब भी मुझे अपना रब मान ले तो उन्हें छोड़ देना, अगर वो मुझे अपना रब तस्लीम ना करे, मुझे अपना खुदा ना माने, तो उन्हें इस आग के अंदर जला देना। तमाम मुसलमानों को पकड़ पकड़ के लाया जाता गया और खंदक के अंदर डालते गए डालते गए डालते गए, जहां तक कि पूरे खंदक इंसानों से भर गई। आखिर में एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था, जरा वो झिझकी कि मेरे रब, अगर मेरा मामला होता कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मेरा मासूम बच्चा, मेरे दूध पीता बच्चा मेरी गोद के अंदर लगा हुआ है, अल्लाह मैं इसको लेकर इस आग के अंदर कैसे कूदूं, मैं ईमान से भी नहीं फिर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हो सकता कि उस औरत का कुछ ईमान डगमगाता, लेकिन इसी दस्ना में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिम्मत बंधाई और उसके बेटे को कुव्वत गोयाई बख्शी। वो बच्चा जो भी अभी दूध पीता बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उस बच्चे ने, उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ तू हक पर है, इन्नकी अला हकिन, ऐ मेरी माँ बेशक तू हक के ऊपर है, और वला तहज़नी, तुझे रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। ये आग हमारे जिस्म को जला सकती है लेकिन हमारी रूह को नहीं जला सकती। ये आग हमारे इस मिट्टी के बदन को खराब कर सकती है लेकिन हमारी रूह को खराब नहीं कर सकती। अगर हम इसके अंदर कूद गए तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत तैयार मिलेगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक लोगों के लिए तैयार कर रखी है। जब उस बेटे की इस बात को उसने सुना, जो कि बोलना नहीं जानता, जिसको अल्लाह ने भी कुव्वत गोया दी ही नहीं है, चंद महीने का बच्चा है, जब अल्लाह ने उसे ताकत दी बोलने की, जब उसने अपनी माँ की हिम्मत बनाई तो वो माँ भी अपने बेटे को गोद में लिए हुए उसी खंदक के अंदर कूद गई। जरा गौर कीजिए कैसा ईमान होगा उन लोगों का। आज का हमारा ईमान कैसा है? रमजान का महीना आया, खूब अल्लाह की इबादतें की, मस्जिदें की भरी भर गई, ऐसा लगता था गोया कि मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी और मस्जिदें और ज्यादा वसी कुशादा कराने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही रमजान गया हमारा ईमान भी चला गया। ऐसे ईमान की अल्लाह को कतई जरूरत नहीं है। ऐसा ईमान इंसान को कामयाबी नहीं दिला सकता, ऐसा ईमान इंसान को जन्नत में नहीं ले जा सकता। जन्नत में सिर्फ वही ईमान ले जा सकता है जिसके ऊपर इस्तिकामत हो, जिसके ऊपर इंसान परमानेंट अमल करने वाला हो। जैसा कि अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से फरमाया, हे अब्दुल्ला तुम उस फला इंसान की तरह से मत हो जाना कि वो पहले तो तहज्जुद गुजार था, तहज्जुद का पाबंद था, लेकिन अब वो तहज्जुद उसने पढ़ना छोड़ दिया है। उस इंसान की तरह से मत हो जाना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो लेकिन परमानेंट करो, व इन कल्ला, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब इबादत करना शुरू कर दिया तो उस इबादत से मुंह मत मोड़ो, उस इबादत को लगातार करते रहो। अगर लगातार करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इस मेहनत को कबूल करेगा, तुम्हारी उस इबादत को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए नजात का जरिया भी बना देगा। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। कभी मन किया तो नमाज पढ़ ली, कभी मन नहीं किया तो नमाज को छोड़ दिया। दुकान पे ग्राहक आ गए, इधर मुअज्जिन हय्या अला सलाह कह दी, हय्या अल फलाह कह दी, बस ग्राहक के अंदर लगे हुए हैं। बहाना क्या है? अगर हम मस्जिद गए तो हमारा ग्राहक हाथ से चला जाएगा। अरे अल्लाह के दुश्मन, ये बताए ग्राहक तेरे पास भेजा किसने है? क्या तेरी हिम्मत है, तेरी ताकत है जो ग्राहक को तो बुला ले? अरे ग्राहक भेजने वाली जात भी तो अल्लाह की है। अगर तुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है
اتنا یاد رکھ لینا کہ اللہ نے جتنا تمہارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے ملے گا اتنا ہی، اس سے ایک پھوٹی کوڑی فالتو نہیں مل سکتی اور نہ ہی اس سے کم ملے گی، بلکہ جتنا لکھ دیا اتنا مل کر کے رہے گا۔ چاہے گراہکوں کے چکر میں اپنی نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، چاہے ذرا سی پریشانی آتے ہی اللہ کو بھولنا چالو کر دو، جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تب ان تمام چیزیں تمہارے تمام اعمال تمہارے برباد اور بیکار ہو جائیں گے۔ ایسے عمل جن کے اوپر مداومت نہیں ہے وہ عمل ہمیں کامیابی نہیں دلا سکیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں جن کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے کا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے بھی 6 روزے اور رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پوری سال کا روزہ رکھ لیا۔ تو برادر اسلام اس لیے میں کہوں گا کہ شوال کے مہینے میں 6 روزوں کو اور رکھنے کی کوشش کریں، اگر رکھو گے تو پوری سال روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت بڑا ثواب اللہ نے ان عبادتوں کے اندر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے نے میری تحمید، میری تکبیر بیان کی ہے، میرے اس بندے نے میری بڑائی کو ایکسپٹ کیا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا عاجز ہو رہا ہے، کتنی میری خوشامد کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت و جلال کی قسم، میں اس بندے کی مغفرت کر دوں گا، جو بھی یہ بندہ مانگے گا دوں گا، جس چیز سے یہ پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ عطا کروں گا۔ شرط کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کا گزارنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کرنے کے بارے نا ہم مسلمانوں نے جو بھی رمضان کے مہینے میں تیری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اے بار اللہ تو نے قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان نے اعمال کے ذریعے سے بار اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا تو معاف فرما۔ اے بار اللہ تو ہم مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار اللہ تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی اے بار اللہ تو کلی طور پر حفاظت فرما۔ اے بار اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے بار اللہ جو مسلمان مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے بار اللہ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔